Good morning to all students. I hope you are good. In a previous video, beta, we have discussed dependency of register. Now we will discuss series and parallel combination of register. Series and parallel combination of register, beta. Is it clear? Okay. Clear? Series combination. Suppose three resistances, beta. A symbol of resistance is like this. Clear? And suppose three resistors are connected in series, matlab it is connected to a single wire. Remember, just like this. And if these three resistors are connected across a battery like this, then what will be the equivalent resistance we will find out, and what will be the current we will find out. Clear? So series combination means three resistances are connected in series, beta. It is connected in a one line. Clear? This thing is clear, beta. So just we are giving name. It is R1, R2 and R3. And a battery is V. It is plus terminal, minus terminal. Clear, beta? Is it clear or not? Okay. Now just see, I am just giving one example. Suppose three tanks are there. These are three tanks and it is connected to a bigger tank. Just try to fill it. Clear? I am saying three tanks are there which is connected to a bigger tank and which is filled of fully water. Okay. Now on a morning time, beta, when motor is started, just कोशिश करना समझने की बेटा, that it is connected to a single pipe. Clear? Now motor is on actually, then what happened? Equal flow of water first come. Equal flow of water will come. It goes like this, and first it will fill this tank. Clear? It will fill this tank, beta. When this tank will fill, beta, then there is not any opposition or not. First, whole beta, no, first when actually this tank is not filled, so it is opposed by this tank. हो रहा था कि नहीं हो रहा था ऐसा? जब तक ये बेटा टैंक भरा हुआ नहीं था, तब क्या था बेटा? अपोजिशन पूरा का पूरा कौन क्रिएट कर रहा था? ये वाला फर्स्ट टैंक. जैसे ही फर्स्ट टैंक ने क्या किया बेटा? वाटर को फुली फिल्ड कर लिया. नाउ इट इज नॉट एबल टू अपोज दिस फ्लो ऑफ वाटर. इज इट और नॉट बेटा? जैसे इसने बेटा सुनो सारा का सारा पानी भर दिया बेटा, इट जस्ट लाइक दैट व्हाटएवर वाटर इज कमिंग, नाउ इट गोस टू इन दिस वे, इन दिस रूट. इज इट और नॉट? कब तक? जब तक ये पूरा का पूरा टैंक भर नहीं जाता तब तक. क्लियर? एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कांस्टेंट. अपन ऐसा फील करके चल रहे हैं बेटा कि एक मोटर ऑन कर दी, जैसे तुमने घर में एक फिक्स रेट से पानी फ्लो होता है ना, वैसे अपन चल के चल रहे बेटा कि इस टैंक से पानी एक फिक्स रेट से आ रहा है बेटा. जैसे ये टैंक पूरा भर गया, नाउ दिस फ्लो ऑफ वाटर विल गोस टू नेक्स्ट टैंक and it will also flow and it will oppose flow of water to this tank till it is not filled. Is it okay or not beta? Now beta, this water tank is also filled. When it is filled beta, then again it will not oppose flow of water. Clear? Clear or not beta? When it is fully filled, then it will not oppose, then water again pass through this route and this tank will also fill. And I can say beta, this whole three sum of beta tank is equals to this. Clear? मैंने क्या बोला बेटा? इन तीनों के बराबर जितना वाटर है ना, उतना ही सिर्फ इस टैंक के अंदर है. तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर आप तीनों को बेटा ऐड करोगे वाटर को, so that amount of water is equals to water filled in this bigger tank or not? होगा कि नहीं होगा बेटा? मुझे फाइंड आउट करना है कि अच्छा ठीक है इस टैंक के अंदर कितना वाटर था. तो मैं क्या करूंगा बेटा? इस
वाटर बेटा जो ये वाली टैंक मैं इसको ऐड करूंगा इसके साथ में, यार इसको ऐड करूंगा इसके साथ में, तो टोटल वाटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इज इट ओके और नॉट बेटा? इन द सेम वे series, if series resistance are connected beta, the same thing happens. Now just try to explain beta that how that three resistance are act when it is connected in series. Clear? तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला बेटा, वोल्टेज मतलब बैटरी लगा दी. Now current will pass in the same way as rate of water was moving na, in the same way current is passing. Clear? And remember beta, a value of resistance R1, R2 and R3 are different. That's why I have taken R1, R2, R3. तीनों की जो वैल्यू है बेटा वो अलग अलग है, याद रख लेना. क्लियर? और अपन ने ओम्स लॉ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल्स टू I R. पढ़ा था क्या? क्लियर? अपन ने क्या पढ़ा था बेटा कि एक रेजिस्टेंस है जो करंट I को अपोज करता है बेटा, तो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज बेटा अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस होगा, तो होगा IR. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? इज इट क्लियर ना? तो now just see बेटा, current I is passing through this first R1 resistance as that flow of water moving towards first tank. Clear? रेजिस्टेंस R1 का क्या काम है बेटा? करंट को अपोज करना, जितना अपोज कर सकता है उसको अपोज करना. क्योंकि सारे रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा, एक फिक्स वैल्यू होती है, एक फिक्स रेट होती है, इतना ही वो अपोज कर सकता है. बट दिस करंट इज कंटिन्यूसली विल कम और नॉट बेटा. ये रेजिस्टेंस इसको करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, लेकिन जितना इसकी कंपोनेंट की वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू, उतना वो अपोज कर सकता है. इसके बाद बेटा इट विल एक्ट एज अ वायर. जैसे जितना ये अपोज कर सकता था टैंक में बेटा, वाटर उसने अपोज किया, एक फुली फिल्ड करने के बाद क्या होगा बेटा, वाटर को बिल्कुल ही अपोजिशन नहीं होगा, क्लियरली वो मूव होगा कि नहीं होगा. ऐसे ही बेटा ये R1 रेजिस्टेंस करंट को जितना अपोज कर सकता है, जितनी इसकी वोल्टेज की वैल्यू है ना, हर रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, तुम चेक करोगे तो हर रेजिस्टेंस में एक वैल्यू भी गिवन होती है कि हाँ इसमें से इतना करंट फ्लो हो सकता है, इसका वोल्टेज ड्रॉप इतने वोल्टेज को क्या कर सकता है बेटा, वो अपोज कर सकता है. तो सपोज इफ I current is passing through this R1 resistance, then how much voltage it will stop, how much voltage drop will be there, that is V1 equals to I R1. इस वोल्टेज का कुछ पार्ट इसने ड्रॉप कर लिया. क्लियर? अब वोल्टेज को बेटा जितना रोक सकता था उतना उसने रोक लिया. इसके बाद ये वोल्टेज को नहीं रोकेगा बेटा, करंट को पास होने देगा, जैसे कि ये टैंक इसको पास होने दे रहा था. नाउ करंट विल पास थ्रू इट एंड इट एक्ट जस्ट लाइक अ वायर बेटा. नाउ क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर? तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो गया बेटा, V1 equals to I R1. Now current will pass through this. Now if current will pass through this beta, again the same function R2 will also try to stop, try to oppose current I. जितना करंट को वो रोक सकता है उतना, जितनी इसकी वैल्यू है बेटा उतना उसको वो रोकेगा, अपोज करेगा. क्लियर? तो मैंने माना बेटा I इंटू R2, इतना करंट बेटा उसने क्या किया, रोक लिया R2 ने. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस कितना होगा, I R2 होगा. क्लियर? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, नाउ इट इज कमिंग फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस. तो यहां पर भी क्या करेगा बेटा, करंट उसको अपोज करेगा. कितना अपोज करेगा, V3 इक्वल्स टू I R3. क्लियर? V1, V2, V3. अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया है. मैं बोलूंगा बेटा इन तीनों में जो ड्रॉप हुआ है वोल्टेज का वो किसके इक्विवेलेंट है? मैं बोलूंगा टोटल जो वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस कितना आएगा, होगा बेटा, आई जस्ट से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. कुछ करंट बेटा यहां पर यूटिलाइज हुआ, कुछ करंट यहां पर यूटिलाइज हुआ, कुछ करंट यहां पर यूटिलाइज हुआ. तीनों के अक्रॉस कुछ वोल्टेज होगा. कितना वोल्टेज? दैट इज इक्वल्स टू दिस बैटरी. ये बैटरी से चल रहा है ना बेटा. सो आई कैन से V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V. एक और एग्जांपल देता हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड. 3 bulbs
बल्ब्स का भी बेटा रेजिस्टेंस होता है, तो 3 बल्ब्स को मैंने कनेक्टेड कर दिया बेटा, ठीक है। सेम वोल्टेज V इज गिवन, करंट I इज पासिंग बेटा। सो बेटा एक बात बताओ, एक वोल्टेज को तुम बल्ब से कनेक्टेड कर रहे हो, छोटे छोटे बल्ब से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बैटरी से कनेक्टेड कर रहा हूं, तो फर्स्ट बल्ब विल ग्लो, देन सेकेंड बल्ब विल ग्लो, देन थर्ड बल्ब विल ग्लो। क्लियर? सबकी वैल्यू मैं बोला बेटा अलग अलग है, ठीक है। सपोज करो V इक्वल्स टू 12 वोल्ट है, इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया बेटा? 3 वोल्ट। क्लियर? इसने कितना वोल्टेज ड्रॉप किया? 4 वोल्ट। इसने कितना वोल्टेज किया बेटा? 5 वोल्ट। क्लियर? सो टोटल ड्रॉप इन 3 बल्ब्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज इन अ बैटरी और नॉट? अपन बोल सकते हैं बेटा दिस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस बल्ब इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप इन दिस बल्ब इक्वल, सॉरी, एडिशन ऑफ प्लस वोल्टेज ऑफ दिस बल्ब इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ बैटरी और नॉट? बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बेटा? इज इट इक्वल और नॉट? तो अपन को हमेशा याद रखना, आप देखो सुनो, करंट को तो सब एक ही रूट मिल रहा है ना, करंट से का बेटा सुनो एक ही वायर से कनेक्ट है ना, इसमें अपन क्या चीज देखेंगे? करंट सेम होगा कि नहीं होगा? सीरीज में सेम होगा ना बेटा। लेकिन रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू है, तो रेजिस्टेंस करंट को जितना रोक सकता है उतना रोकेगा, और फिर उसके अंदर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। यही था ना ओम्स लॉ। एक बार रिवाइज करते हैं, बाकी थोड़ा और समझाएगा जो थोड़ा बहुत डाउट है। क्लियर? ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? सपोज इट इज V, करंट इज पासिंग थ्रू दिस एंड इट इज R। मैंने एक कंडक्टर ले रखा है, मैंने पहले कंडक्टर बनाया था बेटा यहां पर। मैं इस कंडक्टर को कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर क्या एक रेजिस्टेंस नहीं हो सकता? हो सकता है ना बेटा। तो ओम्स लॉ क्या था बेटा? वोल्टेज ड्रॉप, voltage across this conductor, voltage across this resistance is directly proportional to the current passing through it or not? मैंने क्या बोला था बेटा ओम्स लॉ में कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो उसमें से करंट कितना पास हो रहा है बताया था। सपोज इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है बेटा, तो इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I इंटू R होगा कि नहीं होगा? यही पढ़ा था ना बेटा अपन ने, IR ही होगा, जितना करंट पास होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर? इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो सेम मैंने लिया बेटा, अगर रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है, रेजिस्टेंस R3 है, ऑल 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज बेटा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? क्योंकि करंट तो इसमें एक ही वायर बेटा, सिंगल आई फ्लो होगा ना, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा IR1, इसमें IR2, इसमें IR3। लेकिन ये तीनों का अगर बेटा वोल्टेज को अपन सम करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू बैटरीज वोल्टेज। यहां तो कोई दिक्कत है क्या? आई होप बेटा नाउ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर ना? अब इसका रिजल्ट निकालते हैं, चलो। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V इक्वल्स टू क्या है बेटा? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और V इक्वल्स टू if I take common it becomes R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं है। अब इधर देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं? R1 R2 R3, इसका सिंपल एक डायग्राम बना रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? R1 R2 R3 की जो सीरीज में ना, इनको एक ऐड करके मैंने एक R इक्विवेलेंट का, इन तीनों के बराबर मैंने एक R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया। मैंने बोला इन तीनों को बेटा अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो मैंने ले ली और मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया। दैट इज R इक्विवेलेंट, ये V वोल्टेज है, यहां से करंट I पास हो रहा है। फिर से बोला, मैंने क्या बोला बेटा? R1 R2 R3 के इक्विवेलेंट मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है, सिर्फ 3 की जगह मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है। क्लियर? तब बेटा सर्किट डायग्राम क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। और तब इक्वेशन क्या बनेगी? V इक्वल्स टू
आई आर इक्विवेलेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? सिंपल है बेटा, तीन रेजिस्टेंस की वजह से मैंने इनके इक्विवेलेंट का एक ही रेजिस्टेंस से ले लिया है, देन सिंपलेस्ट डायग्राम विल बी लाइक दिस ना, एंड V इक्वल्स टू आई इक्विवेलेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं? तो मतलब मैं V की जगह आई आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बेटा? आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर बेटा, आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर, सो इट बिकम्स आई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आई R1, R2 and R3. I is cancelled and R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3. Clear? So if resistance are series, if resistance are in series, so beta, and if you want to find out R equivalent, so simply just add it. Simply उसको add कर दो, R equivalent आ जाएगा. क्लियर? एक दो क्वेश्चंस करते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा, बिकॉज इट इज अ न्यू प्रॉब्लम, न्यू टॉपिक ना. सो आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम, बट इफ यू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस देन योर डाउट्स विल बी क्लियर. क्लियर बेटा? चलो यहां तक उतार लो बेटा. R equivalent equals to I R1 plus R2 plus R3. और एक चीज याद रखनी है बेटा, नोट बना के लिखोगे स्टार मार्क करके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम. क्लियर? ओके. Current will be same beta. Okay, now just take one example, so your all doubts will be cleared. तो सिंपल लेता हूं, 2 4 6. वैल्यू अगर अच्छी नहीं आएगी ना इसलिए. क्लियर? सो 2 4 6 बेटा. नाउ it is a diagram and you have to find out first R equivalent, then voltage, then current, and at last voltage drop across each resistor. Clear? First you have to find out R equivalent, then you have to find out current, and then you have to find out voltage drop across each resistance. Clear na? So first simple formula, all are connected in series na. Series means R equivalent equals to R1 plus R2 plus R3. Clear? R equivalent equals to 2 plus 4 plus 6. That is equals to 12 ohm. पता है ना बेटा, ये ओम का सिंबल है, जिसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर ना बेटा? ओके. तो फर्स्ट आंसर इज R equivalent equals to 12. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट करंट ना. तो अपने पढ़ा था बेटा R equivalent की वैल्यू आ गई. इस R equivalent को तुम ऐसे सिंपल डायग्राम बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ये R equivalent है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 12 ओम. वोल्टेज कितना है? 12. वी हैव टू फाइंड आउट करंट I. क्लियर? तो V इक्वल्स टू I. R equivalent ना बेटा, V is 12. करंट वी हैव टू फाइंड आउट, R equivalent is 12. क्लियर? So I equals to 12 upon 12, that is 1 ampere ना. कोई दिक्कत है क्या? करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा? 1 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. करंट वी फाउंड. नाउ बेटा वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1. इसको R1 माना है ना अपन ने, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं. तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, 2 है ना, हाँ, 2 ओम रजिस्टर इक्वल्स टू I इंटू 2 है ना बेटा, 2 है कि नहीं है?
तो V1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2, V1 इक्वल्स टू 2 वोल्ट है बेटा। नेक्स्ट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, V2 इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 4 ओम है ना, सो 1 इंटू 4 दैट इज 4 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम इक्वल्स टू 1 इंटू 6 ना, 6 वोल्ट। अब इधर देखो बेटा, मैंने क्या बताया था, इन तीनों वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करोगे तो जो सम होगा बेटा दैट इज इक्वल्स टू बैटरीज वोल्टेज और नॉट। तो जस्ट ऐड 2 + 4 इट बिकम 6, 6 + 6 इट बिकम्स 12। इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर बेटा, I think it is cleared. One question I am giving in homework. Okay, that you have to do beta. One question I am giving in homework. Then your series combination is clear. मेरी तरफ से तुम नहीं पढ़ोगे तो कभी क्लियर नहीं होने वाला, ऑल क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बेटा कर लो। मैंने इजी कर लिया, तुम्हें थोड़ा सा हार्ड दे देता हूं। 3 ओम, 6 ओम और 12 नहीं बेटा, अच्छी वैल्यू नहीं आएगी, मैं दे देता हूं 3, 6 और 18, इसकी अच्छी वैल्यू आएगी, ठीक है, 18 वोल्ट। क्लियर? क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट, देन करंट, देन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके बेटा, तो आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट में अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। और एक चीज बताऊंगा, वीडियोस की फिर से बेटा वेव्स कम हो रहे हैं, तुम नहीं देख रहे हो, बाद में पछताओगे, समझ में आएगा नहीं, रोओगे, ठीक है, पढ़ लो।